اور پھر میں نے ایک خواب دیکھا، ایک تنگ و تاریک سا کمرہ یا تہہ خانہ تھا جس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا جس میں سانس لے پاتا۔ میرے لب پیاس کی شدت سے خشک ہوتے بنجر ہو گئے تھے اور حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ میں قیدی کی طرح کھڑا تھا اور پھر اچانک ہی مدھم سی روشنی اس کمرے کے دونوں کونوں کو روشن کر گئی۔ میں نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ ایک کونے میں دولت ہے اور دوسری طرف تم۔ میں دولت کی طرف جاتا تو تم غائب ہو جاتی، میں تمہاری غیر موجودگی پر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ جاتا، اور تمہاری طرف تمہیں پانے کے لیے بھاگتا، دوسری طرف دولت غائب ہو جاتی۔ میرے سامنے وہ عیش و آرام جس کا میں بچپن سے عادی ہوں وہ سب گھوم جاتے، اور میں پاگلوں کی طرح سر پکڑ کر روتا نیچے بیٹھ گیا۔ پھر تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ رومیسا ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ کیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے ڈیڈ کی آواز آئی اور وہ مجھ سے لڑ رہے تھے کہ شرم کرو، تم رو رہے ہو، مرد بنو اور جاؤ دولت اٹھا لو، لڑکیاں ہزار ملیں گی تمہیں۔ اس کی بات پر رومیسا نے لب بھینچے۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر تمہاری طرف دیکھا۔ تم نے کہا یہ سچ ہے کہ تمہیں سب کچھ ملے گا، ہزار لڑکیاں بھی، پر میں نہیں ملوں گی۔ اور پھر دولت کو دیکھا تو اس کونے سے آواز آئی کہ دولت میں یہ بھی حاصل ہو جائے گی اگر تم غور کرو تو۔ میری پیاس مزید بڑھ گئی اور میں خوش ہو کر اس کی طرف جانے لگا۔ ایک بار پھر پیچھے سے آواز آئی، ہادی یہ سب دھوکہ ہے میرے بچے، اس سے تمہاری پیاس مزید بڑھ جائے گی اور رومیسا تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ مگن سا بول رہا تھا اور رومیسا دم بخود اسے سن رہی تھی۔ وہ آواز، اس آواز میں میری دھڑکنیں سست ہو گئیں کیونکہ میری ماں کی آواز تھی، میری مرحومہ ماں۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے میرے باپ سے تھوڑا آگے میری ماں کھڑی تھی، سفید لباس میں۔ انہیں دیکھتی جیسے میں پرسکون ہو گیا۔ میں روتا ہوا ان سے لپٹنا چاہتا تھا، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ان کے بغیر کتنا اکیلا ہوں، پر یہ سب میری ماں میرے منہ سے جانے بغیر مسکراتی میرے پاس پہنچی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ڈیڈ ناراض ہو گئے۔ میری ماں میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ میرے آگ لگے سینے میں ٹھنڈک سی اتر گیا اور میرے خشک حلق میں نمی سی اتر آئی۔ میں روتا ہوا ان سے لپٹ گیا اور میرے باپ کو شاید اپنا نظر انداز ہونا پسند نہیں آیا۔ تبھی مجھ سے بولے کہ ہادی بیٹے وہ سب دھوکہ ہے، آنکھیں کھولو اور جاؤ دولت حاصل کر لو جس کے لیے ایک دنیا پاگل ہے، کل تمہیں پچھتاوے نہ ہوں، اس لیے جاؤ، میری مانو، پہلے وہی حاصل کر لو۔ پر اس طرف میری ماں نے مجھے دیکھنے ہی نہیں دیا اور وہ مجھے سیدھا تمہارے پاس لے آئیں کہ یہ ہے تمہاری منزل۔ میں نے پہلے تمہیں دیکھا، پھر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دیکھنا چاہا، پر تم نے مجھے مہلت ہی نہیں دی اور میرے ہاتھ تھام لیے۔ میری پیاس مکمل طور پر ختم ہو گئی اور سب کچھ کسی دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ وہاں صرف میں ہی تنہا رہ گیا۔ اب مجھے ہی یہ طے کرنا تھا کہ مجھے تم میں اور دولت میں سے کسے چننا ہے۔ ایک پل کے لیے رکا اور اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے بنا میری سانسیں نہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں سیدھا ڈیڈ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے دولت نہیں، تم چاہیے ہو، مجھے ہانیہ حارث نہیں، رومیسا چاہیے، تو وہ ضرور میری بات مانیں گے، اور اگر نہیں مانے تو مبارک ہو انہیں اپنی ساری دولت، میں انہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا، پر اپنی محبت جو میں نے صرف تم سے کی ہے اسے بیچ سفر میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اگر میں نے بے وفائی کی تو تم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی، نہ ہی میں تمہارے بنا جی سکوں گا۔ اس لیے حرام موت کو گلے لگانے کے بجائے اپنے حق کے لیے لڑوں گا، چاہے ساری زندگی لڑتا رہوں، پر اپنی زندگی کے آخری سانس تک میں تمہیں پانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ تمہارے ہادی کا تم سے وعدہ ہے رومیسا، ہادی نے کہتے ہوئے عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ شدت جذبات سے وہ اپنی نم آنکھیں موند گئی۔ اس کھیل میں وہ ہار سی گئی تھی۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتی وہ اسے اپنا محافظ مان بیٹھی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، جہاں پہنچنے کے لیے اس نے کھیل شروع کیا تھا۔ پر یہ کھیل اب صرف انتقام کا کھیل نہیں رہا تھا، یہ تو زندگی کا کھیل بن گیا تھا۔ پیاس کیا تھی ہادی؟ اس نے اپنی انگلیاں اس کی شیف پر رکھیں۔ یہ لالچ تھی، ہادی کی جان جس کا نشہ لگ جائے تو بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر میں دولت کو تھام لیتا تو یہ پیاس مجھے کہیں دور صحرا میں لے جاتی جہاں سے میری واپسی ناممکن تھی۔ ہادی نے محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پر آپ خود تو میرے پاس نہیں آئے نا، آپ کو تو آنٹی لے کر آئی تھی میرے پاس، وہ یاد کرتی سے پیچھے دھکا دے گئی۔ مام جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر گئی تھی، وہ تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا، ہادی نے شرارت بھرے لہجے میں صوفے سے ٹیک لگا کر کہا۔ کون سی بات؟ اس کی طرح مڑتی بےتابی سے پوچھنے لگی۔ ہادی سیدھا ہوا، اپنی مسکراہٹ دبائی، پھر اس کے کچھ مزید قریب ہوا۔ رومیسا کی دھڑکنیں ادھم مچانے لگیں، سانسوں کی رفتار معمول سے تیز ہونے لگی تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ بیٹا خیال رکھنا، مستقبل کی بیوی کسی حال میں خوش نہیں رہنے والی۔
मैंने ये फंदा तुम्हारे गले में डाल तो दिया है, पर अब खुद को तुम्हें खुद ही बचाना है। सरगोशी करते इसके लरसती पलकों पर फूंक मारी। बात समझ में आते ही इसने झट से आंखें खोली। यू हादी, मैं फंदा हूँ? चीखते हुए कुशन उठाकर इसकी पिटाई करने लगी और वो हंसता हुआ अपने सामने बाजू कर गया। बस बस जालिम, मजाक था। इसकी कलाइयाँ थाम कर इसे रोका। वो अपनी फूली सांसें बहाल करने लगी। सुनो, इस चादर में तुम्हारा चेहरा इस कदर हसीन पुरवकार लग रहा है कि दिल कर रहा है ऐसी 5-10 चादरें तुम्हें लेकर दूँ। इसकी आंखों में देखता मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ इसके पल के झुकाने पर इसे हाथ पकड़कर खड़ा किया। काली चादर के हाले में इसका मासूम गुलाबी मुखड़ा दमक रहा था। कहाँ? खड़ी होती हुई बोली, शॉपिंग और आइसक्रीम खाने। जेब से गाड़ी की कीज़ निकाल कर इसकी हथेली पर रखता हुआ बोला। रोमैसा ने इसे नासमझी से देखा। ये तुम लेकर चलो नीचे और वहाँ गार्ड से मेरी गाड़ी का पूछ कर इसमें बैठो। मैं कुछ देर में आता हूँ तुम्हारे पीछे। वो इसका गाल थपथपाते हुए बोला। वो समझ गई थी कि इसे कोई गलत ना समझे, इसीलिए वो अकेले भेज रहा था इसे। वो इसके ऑफिस से निकलकर गार्ड की बताई गाड़ी का लॉक खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में ड्राइविंग सीट पर बैठते हादी चौहान ने अपना कोट इसकी गोद में फेंकते गाड़ी स्टार्ट की। मैंने कुछ कहा है लड़की? कहाँ है बहराम मलिक का ऑफिस? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के सामने डेस्क पर हाथ मारती वो गुस्से से बोली। इसे पिछली रातों की निस्बत कल रात काफ़ी पुरसुकून नींद आई थी। इसे देखते इसका चैन, सुकून, करार सब लौट आया था। इसने काफ़ी गहरी नींद ली थी, पर सुबह उठते ही इसे रात वाली बहराम मलिक की गुफ्तगू याद आई और इसके साथ ही वो गहरी नीली आंखें भी। अपने बाप से जिक्र किए बिना हिम्मत करती यहाँ पहुँची और अब रिसेप्शन पर खड़ी लड़की पर बरस रही थी। माजरत मैम, सर मीटिंग में बिज़ी हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। वो लड़की घबराई हुई बोली। खूनखार नज़रों से ख़ुद को घूरती हानिया हारिस खान को देखने लगी। ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट पर ब्लैक ही लेदर की जैकेट, पाँव में कैनवस शूज़, शोल्डर कट बालों की पोनी बनाए वो अपनी सब्ज आंखों में एक तूफान लिए इस बेचारी को घूर कर देख रही थी। भाड़ में गई तुम्हारे सर की मीटिंग, अंडरस्टैंड? गुस्से से कहती इसके सामने से लैपटॉप खींच कर खुद ही इसका ऑफिस रूम मालूम करने लगी। मैम, आप अच्छा नहीं कर रही हैं, ये गलत है, हम आपको गार्ड से कहकर यहाँ से निकाल देंगे। वो लड़की इससे लैपटॉप झपटते बोली। हानिया तब तक बहराम मलिक के ऑफिस रूम के बारे में जान चुकी थी। टॉप फ्लोर, फर्स्ट रूम, गार्ड्स बाहर निकालो इसे। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गार्ड्स को बुलाने लगी। हानिया सबको हक्का बक्का छोड़कर भागकर लिफ्ट में दाखिल हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी जब तक गार्ड्स पहुँचे पहली लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। अपने ऑफिस में बैठा बहराम मलिक सामने बैठे अपने तुर्की क्लाइंट से मीटिंग जारी रखते वक्तन फ़वक्तन लैपटॉप की स्क्रीन पर भी नज़र डाल लेता, जहाँ पर लिफ्ट, एंट्रेंस और हॉल का मंजर वाज़ेह था। हानिया का लैपटॉप छीनना, फिर गार्ड से भागकर लिफ्ट में दाखिल होना सब इसकी नज़रों के सामने था। वो लिफ्ट से निकलती टॉप फ्लोर के फर्स्ट रूम में ग्लास डोर को अपनी टांग से धकेल कर अंदर दाखिल हुई। रुकिए मैडम, बाहर निकलें। गार्ड्स, मैनेजर, सामने कैबिन में बैठी सेक्रेटरी इसकी हरकत पर घबरा कर बाहर निकली। बहराम मलिक, इसने ठा करके ग्लास डोर धकेलते हुए इन अंदर दाखिल होकर इसे तमस्खुर से पुकारा, पर जब सामने सोफ़ों पर बैठे तुर्कियों को देखा लब भींच कर हैरत से इन्हें देखने लगी। आई एम सॉरी सर, ये मैडम ज़बरदस्ती अंदर घुस आई हैं। घबराती माजरत करती हानिया को बाजू से पकड़कर ले जाने लगी। चलिए मैडम, बाद में आ जाइएगा। वो इसे घसीट कर ले जाने लगी। हानिया ने गुस्से से इसे पीछे धक्का दिया। भाड़ में जाए तुम्हारा बाद में, अभी के अभी बात करना चाहती हूँ मैं इस कमीने इंसान से। वो गुर्राई। इसके तुर्की क्लाइंट्स हैरत से इसकी उर्दू ज़ुबान चीखो पुकार सुन रहे थे, पर इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसके लफ्ज़ कमीने पर जहाँ सेक्रेटरी घबराई थी, वहीं बहराम मलिक के माथे पर लातादाद शिकने नमूदार हुई। इसकी आंखों में गुस्से ज़ब्त की लाली उभरी। आई एम सॉरी सर, मैम प्लीज़ चलिए। मिन्नत करती हाथ जोड़ती इसे ले जाने लगी। हानिया गुस्से से कैनविस शूज़ में कैद अपना पाँव इसके टेबल पर मारती इसे और तैश दिला गई। एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, नज़रें हानिया पर टिका कर इसने क्लाइंट से माजरत की, और वो जो दिलचस्पी से हानिया खान के तमाशे को देख रहे थे फ़ौरन सर हिलाकर उठ खड़े हुए। मिस ईशा, आप इन्हें मीटिंग रूम में बिठाएं, मैं वहीं आता हूँ। वो सर हिलाती खा जाने वाली नज़रों से हानिया को देखती गार्ड्स को जाने का हुक्म देकर क्लाइंट्स के साथ वहाँ से निकली। बहराम ने लैपटॉप बंद किया और अपनी चेयर का रुख इसकी तरफ करते पास रखे रिमोट से दरवाज़ा लॉक कर दिया। हानिया ने बगैर डरे दांत पीस कर पहले इसे देखा, फिर दरवाजे को, जिससे बाहर का मंजर साफ दिख रहा था। जानती हो, इस बदतमीज़ी पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। इसके सामने आ खड़ा हुआ। बकवास बंद करो।
اس کے باقی کے الفاظ بہرام ملک کے ہاتھ نے اس کے منہ میں ہی دبا دیے۔ گالی نہیں ہانیہ خان، اس کے سبز آنکھوں میں اپنی گہری نیلی آنکھیں گاڑتا سرد لہجے میں بولا۔ ایک دم اس کے قریب آنے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے پر وہ بکھلا گئی۔ اس کی حالت پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ دور ہوا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے سگار لبوں میں دبایا۔ وہ اس کے شاہی انداز پر جل بھون گئی۔ تمہاری بہن کا رشتہ لینے۔ اس کے تل ملا کر کہنے پر بہرام کے لبوں پر تبسم کھلا۔ پھر میرے جواب پر مایوس ہو جاؤ گی؟ اس کا سنجیدہ سرد لہجہ اسے شرارت کی گمان میں الجھا گیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ اس رات تم آئے تھے نا میرے روم میں؟ اس سوال کو کرتے جتنا اسے عجیب فیل ہو رہا تھا، بہرام ملک نے اس سے زیادہ حیرت سے اسے دیکھا۔ مانا کہ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر تم اس حد تک پاگل ہو، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی حیران تھا، یہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ ہانیہ اس کی بےہودگی پر شعلہ فشاں ہو گئی۔ تم نے مجھ سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر سائن لیے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کا نقشہ ہی بگاڑ دے۔ انٹرسٹنگ۔ پھر؟ سگار کا کش لیتے اس نے پرشوق نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی گہری نیلی تپش دیتی نگاہوں سے وہ گڑبڑا گئی۔ پھر کو بھیجو بھاڑ میں مسٹر، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے جواب دو۔ وہ جھٹکے سے اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچتی چلائی تھی۔ بہرام نے اس جرت پر اس کے سرخ آنکھوں پھر اپنے کالر پر موجود ہاتھوں کو دیکھا۔ ثبوت دو۔ اچانک اس نے اپنے کالر پر موجود اس کے ہاتھوں کو اس کی کمر پر لے جاتے موڑ دیا۔ اس بے رحمانہ عمل پر ہانیہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ میں تمہارا باڈی گارڈ نہیں ہانیہ خان، اس کا خیال رکھو۔ ہر کوئی تمہاری بدتمیزی برداشت نہیں کرے گا۔ سب تمہارے منسٹر باپ کا نہیں کھاتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے غصے سے سرد لہجے میں بولتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس رات کی طرح ایک بار پھر وہ اسی خوف کا شکار ہو کر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی مسلسل اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تم ہی ہو وہ، اب مجھے پورا یقین ہو گیا، وحشت زدہ ہوتی ہوئی بولی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں ہی تھا وہ، بہرام ملک، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کے اقرار پر ہانیہ سن سی اس انجان شخص کو دیکھنے لگی جس سے وہ ملی ہی پہلی بار پارٹی میں تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ؟ کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا؟ تم نے مجھ سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا، وہ بھی میرے گھر میں گھس کر۔ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا بہرام ملک؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر آج وہ مجرم اس کے سامنے تھا اور وہ اس کی سرد گہری نیلی آنکھوں سے ہراساں ہوتی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت پر بہرام نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ ہانیہ اس سے جھٹکے سے دور ہوتی گہرا سانس بھر کر اپنی کلائیاں سہلانے لگی۔ بہرام کو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ میں تمہارا نکاح رکوانا چاہتا تھا اور تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، میں نے نکاح نہیں کیا تھا، صرف ایک کاغذ پر سائن لیے تھے تمہارے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میرا نکاح رکوا کر تمہیں کیا ملتا؟ ہمت کرتی ہوئی غرائی۔ بہرام نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ اپنے عنابی لبوں پر سجائی۔ کوئی بزنس مین اپنا نفع نقصان نہیں بتائے گا ڈارلنگ۔ اس نے سگار واپس اپنے لبوں میں دبایا۔ میں کیسے مان لوں تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا؟ وہ اتنا خوش ہوئی تھی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس انجان شخص نے اگر اس سے نکاح نہیں کیا تھا تو یہ کھیل کیوں کھیلا تھا؟ وہ اب اپنے چہرے سے خوشی کے تاثرات مٹائے غم و غصے سے بفری کھڑی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل کی طرح سے پیپرز نکالے اور اس کے سامنے کیے۔ ہانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ سانس روکے انہیں دیکھنے لگی، جہاں وائٹ پیپرز پر اس کے دستخط تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیوں کیا تم نے سب؟ صرف یہ بتا دو۔ وہ اپنے دستخط کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ دیکھ کر ہکلا کر بولی۔ کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری ہو اور جب تک میں چاہوں تو میری امانت رہو گی، پھر کیسے میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دیتا؟ ہانیہ خان، جس پر بہرام ملک کی نظر پڑ جائے وہ صرف بہرام کا ہوا، چیز بھی اور انسان بھی۔ وہ برفیلے لہجے میں بول رہا تھا اور وہ تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ خرید سکتے ہو بہرام ملک، پر نہ مجھے نہ ہی میرے دل کو، کیونکہ صرف اور صرف بیری کا ہے، میرے باڈی گارڈ کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تمسخر سے بولی۔ بہرام نے پہلے اس کی خوبصورت ہنسی کو دیکھا، پھر کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے نے جیسے چاروں اور طلسم سا برپا کر دیا تھا، ہر چیز کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ پر وہ ہانیہ خان تھی، اچھے اچھوں کو جوتی کی نوک پہ رکھنے والی۔ احساس اور حقیقت میں فرق ہے ہانیہ خان۔ وہ تمہارا بیری نہیں، بہزاد ہے، ایک غریب ملازم۔ تمہارے پاس نوکری سے پہلے وہ ایک سڑک چھاپ تھا، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والا، جس کی کوئی اوقات حیثیت نہیں تھی۔ کیوں ایسے خواب دیکھ رہی ہو جن کی کوئی منزل نہیں؟ استہزائیہ بولا۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ پر ہانیہ کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔
मेरे दिल से पूछो, इसकी अहमियत, इसका मुकाम। बहराम मलिक वो मेरा मुहाफिज है, इसके पास मुझे अपने बैरी का एहसास महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है। behzad मेरे करीब होता है तो मैं ख़ुद को महफूज समझती हूँ, वो करीब होता है तो लगता है मेरे करीब मेरा बैरी है। मोहब्बत को दौलत में मत तोलो बहराम, अगर मोहब्बत दौलत देखती तो आज मोहब्बत का एहसास कायम ना रहता। अगर मुझे इसकी औकात और हैसियत देखनी होती तो वो आज मेरे दिल में ना बसा होता। तो मुझे एहसास बता रहे हो बहराम मलिक, जो खुद एक एहसास के ज़ेर असर मुझसे गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती झूठा निकाह कर चुका है। इसके लहजे में behzad के लिए मोहब्बत बहराम के लिए एक काट थी। क्यों इसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो डार्लिंग? अपने सुर्ख आंखें इस पर गाड़ कर इस्तेहज़ाइया बोला। ये सोचकर इसकी आंखें शोले उगल रही थी कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसे वो चाहता है, वो एक मामूली इंसान के लिए इसे ठुकरा रही थी, जबकि दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों के दिलों में वो दिल बनकर धड़कता था। अभी फवाद चौहान की पार्टी की तो बात है जब इसे पेरिस की टॉप मॉडल जूलिया प्रपोज कर चुकी थी, और जब शादी का ख्याल आए तो मुझे ज़रूर याद रखना। बहराम ने तो हंसकर मजाक में डाल दिया कि अभी मोड़ नहीं, पर इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो इसके लिए ही बैठी हो। और हकीकत, वो हकीकत जिसमें तुम्हारा बाप जी रहा है। जानती हो ना, अगर मैं रिश्ता भेजूँ तुम्हारे इस नाम निहात कज़न का भी, पत्ता कट जाता मेरे आगे, और तुम्हारा एहसास, इश्क, फ़लसफ़ा सब बीच में ही कहीं रह जाएंगे, और तुम सीधा मिस हानिया ख़ान से मिसेज़ हानिया मलिक बन जाओगी। ये हकीकत। अब बताओ तुम्हारी हकीकत क्या कहती है? तुम्हारा फ़लसफ़ा क्या कहता है इस हकीकत पर? इसने कहते हुए अबरूज खाए और लबों में सिगार दबा कर एक गहरा कश लिया। वो बराह रास्त इसकी सब्ज़ आंखों में देख रहा था, और हानिया इसके इतने वसूख से बात करने पर कुछ खौफज़दा हो गई, पर इसने ज़ाहिर नहीं होने दिया। बहराम ने इसकी सब्ज़ फैली आंखों में देखते इसके फड़फड़ाते लबों को देखा। क्या इसे हकीकत और तुम्हारी हार समझो हानिया डार्लिंग? वो ज़रा सा झुक कर पूछने लगा, जिस पर वो बिदक के पीछे हुई। इस मगरूर इंसान की आंखें बहुत खौफज़दा कर देने वाली थी। इस पर मज़ीद वहशत बर्पा करता इसका सर्द बर्फीला तासुर इसे अपने गलत कदम का एहसास दिला रहा था कि वो यहाँ आई ही क्यों इसके सामने। हार नहीं बहराम मलिक, इसने बोलने की हिम्मत की, खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी। मैं अपने बाप के सामने अपनी खुशी और तुम्हारी दौलत रखूँगी। अगर उन्होंने मेरी खुशी से आपकी दौलत को अहमियत दी तो बेशक तुम मेरे पुतले को ख़रीद लेना, धड़कते दिल से बोली तो बहराम हंस पड़ा। ये तो हार हुई। इसके लहजे में तमस्खुर था। वो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। नहीं, यह हार मेरी मोहब्बत की नहीं, ये एक बेटी की हार होगी अपने बाप के सामने, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने सारे रिश्ते खोए हैं, इसी तरह मेरे बाप ने अपने बाप जैसा भाई, माँ जैसी भाभी और अपनी शरीक हयात अपनी बीवी को खोया था। अब सिर्फ मैं ही उनका कुल असासा हूँ। अगर मैं गद्दार निकली तो ये मेरी मोहब्बत नहीं, गुनाह होगा। ये मोहब्बत नहीं जो अपने माँ बाप की खुशियों को पाँव तले कुचल कर अपनी मोहब्बत को पाएँ, वो तो जिस्म की हविस हुई ना। अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ आकर मैं भी इनमें शामिल हो जाऊँगी। अगर मैंने अपने बाप के बजाय अपनी मोहब्बत को चुना, आम महबूबा की तरह घर की दीवार फलांग कर इसे हासिल किया, तो मोहब्बत और गुनाह में क्या फ़र्क रह जाएगा? मोहब्बत अंधी का मतलब ये नहीं जो आज के सस्ते आशिकों उनकी महबूबाओं ने बना लिया है। अपनी मोहब्बत के आगे अंधे होकर तारीकी में दीवार फलांग जाना, इस आशिकी को पाया तकमील तक पहुँचाना है। मोहब्बत कुर्बानी है, वो कुर्बानी जो हज़ारों लोगों ने दी होगी अपने पूरे दिल से। तो मैं क्या, मेरी औकात क्या? अगर मेरे बाप ने कहा कि अपनी मोहब्बत उनके पाँव में रख दूं तो मैं रख दूंगी, बल्कि उफ़ भी नहीं करूंगी। वो कहकर खामोश हो गई और मुस्कुराती नज़रों से इसे देखने लगी। कई लम्हे बहराम इसकी बातों के तिलिस्म में खोया इसे देखता रहा, जिससे हानिया को उलझन होने लगी। और अपने बॉडीगार्ड के बारे में क्या ख्याल है, जिसकी खामोश ज़िंदगी में सपने सजा रही हो? हानिया को हैरत नहीं हुई इसके सवालों पर, क्योंकि वो जानती थी जो शख्स इतना गिर सकता था कि इसके रूम में आकर इससे ज़बरदस्ती दस्तखत ले सकता था, इसके लिए कौन सा मुश्किल था इसकी पर्सनल लाइफ को जानना। इसने गहरा सांस लिया और इसकी आंखों में देखा। वो सड़क छाप सही, लोफर लफंगा सही, पर इसकी तरबियत जो छोटी सी उम्र में की गई थी, इसकी वो तरबियत कहती है कि इसकी सोच मुझसे अलग नहीं। जहाँ इतने साल से वो तन्हा जी रहा था, वहाँ कुछ और मज़ीद साल जी लेगा, और जब मेरी याद धुंधली पड़ जाएगी तो किसी अच्छी वफ़ादार हमसफ़र को तलाश करके सुकून से रहेगा। मैडम, यह हानिया ख़ान कौन थी, कहाँ से थी, कुछ याद भी नहीं रहेगा। और वैसे भी मुझसे ज़्यादा इसे अपना फ़र्ज़ प्यारा है। वो कह तो बहुत इत्मीनान से रही थी, पर इसकी डुबडुबाती आँखें, भीगा लहजा, इसके अंदर की बदतर हालत का पता सामने वाले को दे गया था। वो सख्ती से लब भींचे से घूर रहा था।
اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، اور بہرام ملک کو ہانیہ خان چاہیے، پھر بھاڑ میں گیا تمہارا باڈی گارڈ۔ تیج سے کہتا اس کا سکون درہم برہم کر گیا۔ وہ برہمی سے اس گھٹیا شخص کو دیکھتی سامنے ٹیبل پر رکھے پیپر کو دیکھنے لگی جسے بہرام نے اسے دکھا کر وہاں رکھا تھا۔ ایک دم جھپٹ کر اس نے پیپر اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کیوں لاؤ کے کمینے انسان، ہینڈل کو کھینچتی ہوئی چیخی۔ بہت خوب۔ سگار ایسٹرے میں رکھتا 2 ہاتھ پینٹ کی جیب میں پھنسا کر اسے دیکھنے لگا۔ لاک کھولو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی اپنی مری ہوئی دادی یاد آ جائے گی۔ پاس ہی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھے انتہائی خوبصورت پھولوں کے ڈیکوریشن پیس کو ٹانگ سے نیچے گراتی وہ دہاڑی، پر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ بفری ہوئی سے دیکھتی دروازے کی طرف پلٹی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے اس کمینے شخص نے قید کر لیا ہے، پلیز ہیلپ می ترکیو۔ اس کی ہیلپ می کی آواز پر اس کی چیخ و پکار دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہانیہ خان ہوم منسٹر کی بیٹی ہے۔ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اسے دروازے پر مکے برساتے دیکھتا رہا۔ وہ گھر میں کسی کو بتا کر نہیں نکلی تھی، اپنے باپ کو ڈرائنگ روم میں موبائل پر محو گفتگو دیکھ کر خاموشی سے نکل آئی تھی، اور یہاں سے سیدھا بہرام علی کے آفس کے سامنے رکی تھی۔ اس بلڈنگ کو وہ ٹی وی پر بھی دیکھ چکی تھی، پر اس بادلوں کو چھوتی عمارت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی۔ دروازہ لاکڈ اور روم بھی ساؤنڈ پروف ہے۔ بہرام نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں کہا، جس پہ ہانیہ کا حلق خشک ہو گیا۔ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، اسے اپنے بالکل سامنے کھڑا پا کر دروازے سے چپک گئی، پیپر والا ہاتھ اپنی کمر سے لگا دیا۔ اتنی سی بات پر اتنی بڑی تقریر، میرا قیمتی وقت بہت برباد کر چکی ہو، اوپر سے اب یہ چوروں والی حرکت۔ متبسم لہجے میں وہ اسے شرم دلانا چاہتا تھا، پر وہ ہراساں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں اونچا لمبا ورزشی جسامت والا وہ دیو جیسا بندہ اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس سے اٹھتی اس کے کلون کی دل فریب خوشبو اس کے حواس پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے بدلتے تاثرات، غصے سے سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھتے بہرام علی کا دل کیا جھک کر انہیں چھو لے۔ بکواس بند کرو، میں تمہارے منحوس خواب کبھی پورے ہونے نہیں دوں گی، اور ساری دنیا کے سامنے تمہارا گھٹیا چہرہ لاؤں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی وہ اسے چیلنج کرنے لگی۔ یو نو ڈارلنگ، میری موم کو تم بہت پسند آئی ہو، انہیں صرف یہ اعتراض ہے کہ تم غصہ بہت کرتی ہو، اور ڈیڈ کو تو پہلے میری پسند بہت پسند ہے، اب رہے حارث خان، بس ان سے بات کر لوں میں، پھر تو میرا گھٹیا چہرہ دنیا کے سامنے لانا، اور میں تمہیں اس گھٹیا شخص سے توڑنے کی ٹرائی کرتا ہوں۔ لیٹس سی۔ اپنی بات کہہ کر وہ جھکا اور اس کے پیچھے سے پیپر لے لیا۔ ہکا بکا سی اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ اسے دو مجھے کمینے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بےہودہ، گھٹیا، مکار۔ چیختی اس پر جھپٹی اور وہ مسکراتا ہوا اپنا ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ جاہل عورت، وہ بڑبڑایا اور اس کی کوشش کو ناکام کر گیا، جو جمپ لگاتی اسے پیپر چھیننے کی کوشش میں بے حال تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور اس نے ناکام ہوتے اپنے کینوی شوز میں قید پاؤں اس کے گھٹنے پر مار دیا۔ اس کی حرکت پر بلند قہقہا لگا اٹھا۔ یہ تم چھین کر کیا سمجھ رہے ہو، بچ جاؤ گے؟ بے غیرت، بزنس کے کیڑے انسان، میں ہانیہ خان تمہارا وہ حال کروں گی تمہیں اپنی مری ہوئی دادی یاد آ جائے گی۔ ہار مان کر بولی اور جینس کی جیب سے رومال نکال کر اپنا ماتھا صاف کرنے لگی۔ بہرام نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پیپر فولڈ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ صاف ظاہر تھا نہ اس کی گالیوں کا اثر ہو رہا ہے، نہ ہی چیخوں اور دھمکیوں کا۔ جان گئی ہوں تمہاری کامیابی کا راز، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں چمکی۔ واو، مجھ سے بھی شیئر کرو نا ڈارلنگ، میں سننا چاہوں گا اپنی کامیابی کا راز۔ اس کا پھولا سانس دیکھ کر وہ میز پر سے پانی کا گلاس لے آیا اور اس کے سامنے کیا۔ ہانیہ نے سرخ خونخوار نظروں سے پہلے اسے دیکھا، پھر گلاس کو، اور ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دیتے نیچے گرا دیا۔ روم کی فضا میں چھناک کی آواز گونجی۔ یہی کہ تم ایک نہایت ڈھیٹ کمینے شخص ہو، جو صرف انسانوں کو بے شرموں کی طرح سنتا ہے اور اپنا کمینہ پن دکھاتا ہے، رائٹ؟ یہی ہے نا تمہاری کامیابی کا راز؟ وہ چلا کر کہہ رہی تھی، اور بہرام نے مسکرا کر بغیر برا مانے اس کی جیکٹ میں لگے بٹن کو ایک دم کھینچ کر الگ کیا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بہت ہو گئی مووی ریکارڈ، اب ختم۔ ریموٹ سے لاک کھولتا اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر مائکرو کیمرہ جیب میں ڈالتا میٹنگ کے لیے روانہ ہوا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ رکا۔ یاد رہے، اگر اب تم نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا، تمہارے دستخط اس پیپر کے بجائے نکاح نامے پر نظر آئیں گے۔ دنیا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، وہ کہہ کر رکا نہیں، اور ہانیہ کا وہ حال تھا ابھی اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تو بہرام علی کی دونوں آنکھیں ہی پھوڑ دیتی۔
दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने शीशे के कैबिन में बैठी सेक्रेटरी से गुस्से से घूर रही थी। हानिया मोटी मोटी गालियाँ इस ऑफिस, इसके बॉस को नवाजती यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी सामने रखे लैपटॉप पर नज़र पड़ी। वो चलती हुई टेबल के पास आई और चेयर को टांग मारकर नीचे गिराती टेबल से लैपटॉप समेत हर चीज़ नीचे फेंक चुकी थी। ये लड़की, वो बौखलाई घबराई भागती हुई अपने कैबिन से निकली और इसकी चीख पर मीटिंग के लिए जाते बहराम ने पलट कर इसे अपने ऑफिस की तरफ भागते देखा। गड़बड़ समझकर वो खुद भी इसके पीछे दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर इसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। सारा रूम कांच से और सोफे पर रखे फटे हुए कुशन से भरा पड़ा था। फाइल्स नीचे पड़ी थी। क्रिस्टल के वास से गुलाब बिखर कर नीचे गिरे हुए थे। वो तेज से इसकी जानिब बढ़ा। यस मी। डरने वालों में से वो थी नहीं। फेमस होगा अपने लिए, वो खुद अपने लिए फेमस थी। भीख के लिए आ जाना दरवाजे पर, कहकर वहाँ से निकलती चली गई। सर, बहुत नुकसान कर दिया, उसने घबराते हुए बताया। शट अप। इसकी पुश्त देखता मुट्ठियाँ भींच गया। साफ करवाओ इसे 2 मिनट में ही सब। पलट कर इस पर दहाड़ा। लिफ्ट की तरफ जाती हानिया खान का कहकहा फ़ज़ा में फैल गया। वहाँ से गुजरते वर्कर्स हैरत ज़दा से इसे चौल नज़रों से देख रहे थे। वो मलिक ऑफिस की इमारत से निकलती अपनी गाड़ी में बैठी। इसका रुख अब रेस्टोरेंट की तरफ था जहाँ इसकी दोस्तें इसका इंतज़ार कर रही थी। पेपर नहीं मिला, कैमरा भी छीन लिया गया। इसका दिल दुख से फटने के करीब था। तो कहीं ये भी सुकून था वो इसके निकाह में नहीं। सर से जैसे एक बोझ हटता महसूस हुआ था। सॉरी, लेट हो गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते अपनी दोस्तों के पास पहुंची और माजरत करती चेयर खिसका कर बैठ गई। कुछ ज़्यादा ही, तानिया ने बिगड़े मूड के साथ कहा। तुम्हें नहीं कहा इंतज़ार करने के लिए, गुस्से से कहते इसने तिरछी नज़रों से घूरा। इसका मूड अभी तक ख़राब था। इतनी मेहनत से अपने बाप से छुप कर ऑर्डर किया गया माइक्रो कैमरा भी गया और रिकॉर्डिंग भी। पेपर्स भी हाथ में आते आते रह गए। चलो इस शुक्र था इस घटिया तरीन शख्स ने इससे निकाह नहीं किया था, पर हादी से निकाह रुकवाया क्यों था? वो गहरी सोच में थी। अपनी मोहब्बत के लिए इसने इतना यकीन था तो फिर आ जाता रिश्ता लेकर। देख लेता अपना अंजाम कि इसके बाप और फवाद अंकल की दोस्ती कितनी गहरी है। हारिस खान ऐसे आते जाते रिश्तों पर टूटते तो अब तक कितने रिश्ते आ चुके थे इसके लिए। बहरहाल ये तो बात काफ़ी झूठी साबित हो रही थी कि अपनी मोहब्बत के लिए इसका निकाह रुकवाया था। क्या निकाह वाले दिन इससे मोहब्बत हुई थी या इससे एक दिन पहले जो रिश्ता नहीं भेज सकता था? दफ़ा दूर, मैं क्यों इसे सोच रही हूँ, मुँह बनाकर बुड़बुड़ाई। कल यूनिवर्सिटी आओगी? सोनिया ने पूछा, जिस पर हानिया ने सर हिलाया। बॉडीगार्ड साथ लाओगी? नौरीन ने तानिया को मटकाती नज़रों से देखते पूछा तो खिलखिला कर हंसी, जो हानिया को काफ़ी नागवार गुजरी। वो सर हिला गई और इतने में वेटर आ गया। उन्होंने ऑर्डर दिया। हानिया के क्लच में मौजूद इसका मोबाइल बज उठा। एक्सक्यूज़ मी। वहाँ से साइड पर आई जहाँ कोई नहीं था। यस डैड। मुस्कुराती आवाज़ में आंखें मीच कर कहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी हनी। गार्ड्स को धमकियाँ देकर अकेली घर से निकली हो, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो? एक बार बता दो, मारना चाहती हो तो मैं खुद अपनी जान तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। दुरुस्तगी से बोल रहे थे और हानिया जो अपनी कनपटी मसलती मुजरिम बनी सुन रही थी, इनकी आखिरी बात पर तड़प उठी। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आप ऐसे तो ना कहें डैड। शर्मिंदगी तड़प से मिनमिनाई। तुम हमेशा यही कहती हो और फिर वही तुम्हारा हाल। उनका लहजा बदस्तूर गुस्से में डूबा हुआ था। नहीं, लास्ट है, बस इसके बाद ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस ले लें। वो जल्दी से बोली, पक्का वाला? कुछ मुतासिर हुए। यस, पक्का वाला। वो यहाँ वहाँ नज़रें घुमाने लगी कि एक कोने में मौजूद शख्स पर नज़रें पड़ते इसने आंखें सुकेड़ी। हादी को एक ब्लैक चादर में मौजूद लड़की के साथ देखकर मायने खेजी से मुस्कुराई। ओके डैड, मैं पहुँच रही हूँ, बाय, खुदा हाफिज़, लव यू। इसने झट से कहकर बगैर दूसरी तरफ की बात सुने मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखा और पोनी को झुलाती अपनी फ्रेंड से मज़ीद 2 मिनट का एक्सक्यूज़ करती हादी की टेबल की तरफ बढ़ी, जो इस लड़की के मुंह की तरफ कॉफ़ी का कप कर रहा था। पियो हार्ट बीट, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। हादी लास्ट वार्निंग देने लगा और इसने मुंह बनाते हुए कप थाम लिया। हाय, व्हाट अ रोमांटिक सीन। वो इनके पास चेयर खिसका कर बैठी और दोनों हथेलियाँ गाल पर टिकाकर अचानक छापा मारती हुई बोली। हादी हानिया को अचानक सामने पाकर चौंका। वहीं रोमैसा का रंग सफ़ेद पड़ गया। इसने घबरा कर कप नीचे रखा और डरते डरते हादी को देखने लगी। अगर आज मैं ना आती यहाँ तो मिस कर देती इस प्यारे से कपल को। इसने अपनी आंखें नचाकर हादी को देखते चबा चबा कर कहा। हादी ने इसे इग्नोर किया। सॉरी। इसने रोमैसा को आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया और हानिया की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो इसे गुस्से से घूर रही थी। फॉर व्हाट? इसने हल्का सा हाथ टेबल पर मारते पूछा।
میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں رمیسا سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب تک جو بھی تمہارے ساتھ حرکتیں کی اس کے لیے آئی ایم سوری۔ جانتا ہوں یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، پر میرے پاس یہ کہنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگین سوری فار ایوری تھنگ، نادم سا بول رہا تھا اور ہانیہ اچانک سے اس انکشاف پر کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے۔ یہ تمہیں میرے ڈیڈ اور اپنے ڈیڈ کے سامنے کہنا پڑے گا۔ اس نے سرسری سی نظر گھبرائی بیٹھی رمیسا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، پر صرف کچھ وقت دو پلیز، ویسے بھی ابھی ہماری شادی کا ذکر نہیں۔ ڈیڈ اپنے ٹینڈر میں مصروف ہیں اور انکل الیکشنز میں۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر سوچ کر مان گئی اور رمیسا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ خان جانتی تو ہوگی، اس نے نخوت سے کہا۔ رمیسا اس کے ہاتھ کو دیکھتی مسکرائی اور اس بات میں سر ہلاتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ رمیسا مدھم لہجے میں بتایا کہ وہ بمشکل سن سکے۔ اس نے مسکراہٹ روکی۔ خوبصورت ہے، پر مجھ سے زیادہ نہیں، اس نے مغرور لہجے میں کہتے اپنی سبز آنکھیں گھمائی، جس پر رمیسا تو ہونک سی اس کانچ کی گڑیا کو دیکھنے لگی۔ البتہ ہادی ہنس پڑا اور بولتی بھی چوزوں کی طرح ہے۔ اس نے اس کی مدھم آواز پر چوٹ کی۔ ہاں اسے ڈر لگتا ہے گلا پھاڑ کر بات کرنے والیوں سے، اس نے شرارت سے چھیڑا، جس پر ہانیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں گلا پھاڑ کر باتیں کرتی ہوں؟ وہ چیخ پڑی۔ ہادی زور سے ہنسا اور رمیسا بھی ہنسنے لگی۔ میں نے تو تمہارا نام بھی نہیں لیا ہنی۔ ہانیہ سر کھجاتی جھینپ گئی۔ اس وقت اتنی پیاری لگی رمیسا بے ساختہ دیکھتی رہ گئی اسے۔ ہاں ایک چیز اچھی ہے اس میں جو میرے پاس نہیں۔ وہ مایوس ہوئی اور ہادی کو حیرت ہوئی، کس چیز کی کمی؟ رومی نے بھی اسے دیکھا، اس کے ڈمپل۔ اس نے انگلی اس کے گالوں کی طرف کی اور آنکھیں میچیں۔ ہادی اور رمیسا اتنی سی بات پر اس کے یوں مرجھا جانے پر پریشان سے ہوئے۔ آپ تو ایک خوبصورت مجسمہ ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں۔ رمیسا کو اس گڑیا کا مرجھا جانا اچھا نہیں لگا، تبھی جھٹ سے بولی۔ ہادی اور ہانیہ دونوں ہنس پڑے۔ جانتی ہوں، وہ اپنی پونی جھلاتی بولی اور اس کے آئس کریم کپ سے چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مہمان کو سوکھے منہ نہیں بھیجنا چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ کہتی ہوئی اٹھی، دونوں ہنس پڑے اس کے انداز پر۔ تمہیں معلوم ہے اس کا بھی فیوریٹ فلیور اسٹرابیری اور چاکلیٹ ہے۔ ہادی نے اس پر انکشاف کیا اور وہ کھلکھلائی۔ ساری دنیا کا ہو سکتا ہے، صرف اس کا نہیں، کہتی اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ دونوں کو خاموش دیکھ کر رومی نے پوچھا۔ ہادی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو ہنی؟ باڈی گارڈ کو نہ پا کر ہادی نے پوچھا۔ دوستوں سے ملنے آئی ہوں، اکیلی، بس جا ہی رہی تھی۔ ہمارے ساتھ چلو، رومی کو ڈراپ کر کے تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ تارڑ والا کیس تو جانتی ہو، اس نے آفر دی اور اسے خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ نہیں تم اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، میں چلی جاؤں گی، کہہ کر اس کی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ پاگل ہے بالکل، میں انکل کو انفارم کرتا ہوں، اس نے کہہ کر حارث صاحب کو اس کی موجودگی کا بتایا، جنہوں نے شکریہ کہہ کر اسے ساتھ لانے کا کہا۔ ہادی نے اوکے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ وہ کیوں اکیلی نہیں جا سکتی؟ رمیسا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، کافی خطرہ ہے اسے، تم سمجھ نہیں رہی، پہلے بھی کئی بار اٹیک ہو چکے ہیں اس پر۔ یہ انکل کی کمزوری ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ بے فکر بنی گھوم رہی ہے۔ انکل نے اس کی پروٹیکشن کے لیے باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے جو 12 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، اور یہ میڈم اسے چھٹی دے کر چھپ کر گھر سے نکل آئیں۔ ہادی کے منہ بنا کر بتانے پر رمیسا ہنس پڑی۔ کتنی خوبصورت اور کیوٹ ہے نا؟ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، جو دوستوں کے ساتھ بیٹھی فورک سے کچھ منہ میں ڈالتی ناک سکیڑ رہی تھی۔ ہاں کیوٹ تو ہے، پر مرچ جیسی ہے، اچانک جو موڈ بگڑے تو سامنے والے کو نہیں دیکھتی، کبھی تو انکل سے بھی نہیں سنبھلتی۔ مسکراتا اسے بتا رہا تھا کئی دنوں بعد اس کے دل میں ہانیہ کے لیے ایک سچے دوست والی فیلنگز آئی تھی، ورنہ تو ہمیشہ اسے ہرٹ کرتا رہتا تھا۔ کیا بہت خطرناک ہے؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ بہت، ہادی نے کہتے ہوئے کافی کا کپ اس کے اپنی طرف جھکے سر کو دیکھتے اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ گھبرا گئی اور آس پاس کا خیال کرتی ایک گھونٹ بھر کر دور ہو گئی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کے نشان پر اپنے لب رکھ کر گھونٹ بھرا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، چلیں مجھے گھر جانا ہے۔ آپ کی بھیجی نرس امی کا خیال رکھتی بھی ہوگی یا نہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہادی نے اس کے ریگولر یونیورسٹی جا کر کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ایک نرس بھیج دی تھی، جو پیچھے اس کی بیمار ماں کا خیال رکھتی تھی۔ اب وہ اپنی پڑھائی اچھے سے کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی اور کبھی کبھار ہادی سے بھی بات کر لیا کرتی تھی کالز پر۔ وہ نروی سی ہوتی ٹیبل کی سطح کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ ریلیکس، چلتے ہیں، صرف ہنی کو اپنی فرینڈ سے فری ہونے دو، اور کھانے سے تو تم نے قسم ہی لے لی کہ اپنی اماں کے ساتھ ہی کھاؤ گی، میں چاہے بھوکا رہوں۔ وہ ناراض ہوا۔ اوف، آپ بھی نہ ہادی، میرا سچی میں دل نہیں کر رہا ابھی کھانے کو، آپ کھا لینا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر منت کی۔ ہادی نے مسکراتے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے فنش کرو۔ اس نے آئس کریم کپ کی طرف اشارہ کیا جو آدھا تھا۔
वो मुस्कुराती सर हिलागी और हादी ने इसके सर पर चपत मारी तो वो हंस पड़ी। फिर कुछ देर बाद हानिया की निकलती वो भी इसके पीछे हुए इसे घर तक बाहिफाजत छोड़कर रुमैसा को इसके घर की गली के सामने ड्रॉप करते। इसके जाने के बाद खुद ऑफिस आ गया जहाँ फवाद साहब भी मौजूद थे। वो खामोशी से अपने रूम में गया और अपना अधूरा काम करने लगा। क्या हुआ डैड, आप परेशान हैं? लाउंज में बैठे हारिस साहब को सोचों में महव देखकर पास बैठती हुई पूछने लगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। वो चौंकिया और इसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू डालकर इसे अपने सीने से लगाते हुए बोले। झूठ, आप परेशान हैं, बताएं मुझे, आपको मेरी कसम। झट से हारिस साहब का हाथ अपने सर पर रख गई। ओ फनी, कितनी दफ़ा का ये हरकत मत किया करो, पर तुम्हें समझ जाए तब ना। वो गुस्सा हुए इसके कसम देने पर। हाँ तो फिर नहीं करूँगी ना, आप एक बार में ही मेरी बात मान लिया करें, मुँह बना कर बोली। कुछ नहीं बेटा, बस मैंने और फवाद ने कमिश्नर से तुम्हारे मसले की बाबत डिस्कस किया और उन्होंने रिजवान से जानने की कोशिश की, पर वो इस सबसे लाइल्म है। इसे नहीं मालूम ये किसने किया था। इसने इकरार किया है कि इसने हम पर हमले ज़रूर किए हैं, पर ऐसा निकाह वाला काम नहीं किया। ये कोई और है जो छुपा हुआ दुश्मन है। हानिया का सर सहलाते परेशानी से बोल रहे थे। हानिया लब भींच गई। वो चाहकर भी इन्हें नहीं बता सकी कि वो मुजरिम कोई और नहीं बल्कि बहराम मलिक था। तुम फिक्र ना करो, जल्दी वो मुजरिम तुम्हारे सामने होगा और उसे ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि इसके ख़ानदान की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। उनके लहजे में संजान दुश्मन के लिए दरस्तगी थी। सबूत तो आए थे हाथ पर, फिर निकल गए। हानिया ने खामोशी से सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। चलो बहुत देर हो गई है, सो जाओ, उठो, शाबाश मेरा बेटा। खुद खड़े होने के साथ इसे भी खड़ा किया और इसके रूम की तरफ ले आए। आह डैड, मुझे भी नींद ही नहीं आ रही। हानिया ने मुंह बनाया और इनसे अलग होने के लिए मुज़ाहिमत करने लगी। हारिस साहब इसके बिल्कुल हक में नहीं थे। मुस्कुराते इसे इसके बेडरूम में लेकर आए और बेड पर बिठाकर गुस्से से सोने का हुक्म दिया। मुलाजमा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दूध का गिलास ले आई तो वो इसे पिलाकर इसके ऊपर कंफर्टर डाला। अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, जैसे एक अच्छा बच्चा सोता है ना, शाबाश। उन्होंने खिड़की बालकनी को लॉक करते हुए ग्लास डोर अच्छी तरह बंद किया और पर्दे बराबर करते इसकी जानी मोड़े। डैड, पर्दे तो हटा दें, मैंने चांद देखना है। रोहान से होकर चांद के छुप जाने पर बोली। सुबह देख लेना, अभी सो जाओ। अपनी सोचों में घिरे वो बोले, जिस पर हानिया हवन्नकों की तरह इन्हें देखने लगी। हैं, दिन में कब से चांद निकलने लगा डैड? वो हैरान हुई। हारिस साहब को अपनी बात का एहसास हुआ तो हंस पड़े। मेरा चांद तो तुम हो डार्लिंग, जो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। वो इसके पास आकर झुकते इंतहाई मोहब्बत से कहते, इसके माथे पर बोसा देने लगे। ओह, तो आपका मतलब है कि मैं आपको चांद कहूँ, इसलिए आप कह रहे थे सुबह देख लेना। ओह माय गॉड, वो खिलखिला कर हंसी। हाँ तो क्या हम किसी से कम है? हारिस साहब मसनूई संजीदगी से गोया हुए और हानिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तुम्हारी मॉम तो छुप छुप कर मुझे देखती रहती थी रात को, उनका तो चांद मैं ही था। वो गमगीन हो गया और लहजे में थकन सी उतर आई। हानिया ने एकदम संजीदा होकर उनका हाथ थाम लिया। गुड नाइट माय डार्लिंग। इसे सीरियस होते देखकर अपने चेहरे पर खुशगवारियत सजाए, माथे पर बोसा देते, से सोने की तलकीन करते वहाँ से चले गए। उनके जाती हानिया उठकर बैठी और डोर को देखने लगी जो इसके डैड बंद करके गए थे। काश डैड, हमारी खुशियों, हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ने वाले मेरे सामने आ जाते तो मैं इन्हें अपने हाथों से काट कर रख देती। अल्लाह पूछे हमारी खुशियाँ नोचने वाले से। वो दुआएं मांगती मुजरिम को सामने लाने का सोचती उठकर ग्लास डोर से पर्दे हटा चुकी थी और अब सियाह आसमान पर सितारों के बीच पूरा चमकता रोशन चांद इसकी आंखों के सामने था। वो इसके शहर में जकड़ी मुस्कुराती हुई बेड पर आई और लाइट ऑफ करके आंखें इस चांद पर टिका दी जिसमें इसे वो नज़ारा दिख रहा था। जब वो बहजाद की बाइक पर रात गए, गाड़ियों की रोशनियों में बैठी हाथ फैलाए आज़ादी की खुशबू अपनी सांसों में उतार रही थी। इस वाइल्ड मैन के बारे में सोचते इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई, इर्द गिर्द जैसे सुनहरी तितलियां मंडलाने लगीं और वो इसके शहर में जकड़ी सारे दिन की तलखी भुलाए मुस्कुराते सोचते इसकी आंख लग गई। बंद आँखों के पीछे वो थी और इसके सामने खड़ा इसका बॉडीगार्ड जिसको वो इंसल्ट कर रही थी और वो बुड़बुड़ा रहा था। नींद में ही हानिया खिलखिला कर हंसी। वेल डन बहराम, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। आईजी साहब ने अमेरिकन फोर्स की ब्रॉक डैनियल की मर्डर की तफ्तीश में नाकामी देखकर बहराम पर फ़ख्र महसूस किया, जिसका इजहार उन्होंने ख़ुद बहराम मलिक के ऑफिस में आकर किया। हमें इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए थी इसे, लेकिन वो नाराज़ लग रहा था। आसान मौत भी नहीं दी तुमने बहराम। ज़फ़र साहब ने इसका जुनूनी अंदाज़ देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया, जिस पर वो खामोश हो गया। ठीक कह रहे हैं ज़फ़र साहब, आईजी मुत्तफ़िक हुए। बहराम ने आंखें घुमाई और ये देखकर ज़फ़र साहब नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाने लगे।
रिलैक्स बहराम, अफसोस को छोड़ो, फ्यूचर को देखो। सरफराज साहब की बात पर उन्होंने सर हिलाते सामने लगी एलईडी ऑन की, जहां फवाद चौहान की मिल का अंदरूनी मंजर चल रहा था। हमारे आदमी कौन है इनमें? लातादाद वर्कर्स देखकर जफ़र साहब ने पूछा। बहराम मुस्कुराते हुए इन्हें अपने आदमियों की पहचान करवाने लगा। कितने दिन बाकी हैं फवाद की तबाही में? ये सवाल आईजी साहब का था। सिर्फ कुछ ही दिन। वो बड़े आराम से बोला। क्या ये सच है कि तुम इसके बाद हारिस खान के साथ रिश्ता जोड़ोगे? सरफराज साहब की शरारत से पूछने पर जफ़र साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम भूल रहे हो, तुम दो प्यार करने वालों के बीच आ रहे हो बहराम, आईजी साहब ने टोका, जिस पर वो कहकहा लगा उठा। हर लव स्टोरी में एक विलन होता है। मध्यम सा मुस्कुराया। और वो विलन तुम हो, राइट? वो बलजस्ता बोले। इस लव स्टोरी का विलन भी मैं हूँ और हीरो भी। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जिस पर जफ़र साहब और आईजी साहब का कहकहा लगाकर हंस पड़े। पर ख्याल रखना, इस लव स्टोरी की हीरोइन काफ़ी ख़तरनाक है, उन्होंने आगाह करना ज़रूरी समझा। इस हीरोइन को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। बहराम ने सर झटका। यह इट्स राइट। सरफराज साहब ने सर हिलाया। अब की बार उनके छत फाड़ कहकहे का साथ बहराम ने भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए गाड़ी का डोर खोलते बहजाद ने मोहब्बत से इसे देखा। हानिया ने गर्दन अकड़ा कर सर हिलाया और अंदर बैठ गई। वो भी मुस्कुराते ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी खान मैंशन से बाहर निकली। रात को मैंने ख्वाब देखा। अपने आगे आई लट को उंगली पर लपेटती इसे मिरर में देखती हुई बोली। मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इसे देखकर दिल में एक अनजानी सी खुशी हो रही थी। इसकी बात का आगाज़ करने पर मुस्कुराते लबों से इसकी सब्ज़ आँखों में देखा, जहाँ एक गरूर सा था। इस मीठे से नमकीन से प्यार का। इसे लग रहा था कि मगरूर एटीट्यूड बना ही इस गुड़िया के लिए था। मुबारक हो, इसने शरारत से कहा। हानिया ने आंखें सुकेड़ी। बेवकूफ़ इंसान, पूछो तो कौन सा ख्वाब देखा था? तुम 2 टके के मुलाजिम, मुबारकबाद दे रहे हो। वो अपना क्लच इसकी तरफ फेंकती गुस्से से गुर्राई। बहजाद इसके रिएक्शन पर सटपटा गया। मैडम, गुस्सा तो ना करें, आपने कौन सा बताया कि पूछना है? वरना एक मुलाजिम की क्या औकात अपनी मैडम से पूछे, मैडम आपने रात को कौन सा ख्वाब देखा था? इसकी बात सुनकर हानिया का दिल किया इसका सर फाड़ दे। मतलब मुर्गी की वही एक टांग। रात को क्या कहा था कि औकात हैसियत की बात की, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जाहिल, वाइल्ड मैन। तुम्हें अपनी मैडम की बात समझ क्यों नहीं आती? अब तो वो इसे समझाते समझाते तंग आ चुकी थी और वह नन्हा बच्चा बना हुआ था। अच्छा गुस्सा थोक दें, ये बताएं हमारी मैडम ने कौन सा ख्वाब देखा? मोड़ मोड़ते इसने पूछा। वह गहरा सांस भर कर सर सीट की पुश्त से टिकाकर आंखें मूंद गई। मैंने रात को देखा, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। वो रुक रुक कर बताने लगी। फिर कौन सा तीर मार लिया? ये तो आप रोज़ करती हैं। उसने बैक व्यू मिरर से इसे देखकर मुंह बनाया। वजह भी तो सुनो वाइल्ड मैन। वो गुस्से से बोली। इसने जल्दी से सर इस बात में हिलाया। तुम तानिया से बातें कर रहे थे, मैंने तुम्हें ड्यूटी से फारिग कर दिया और तुम 2 टके के मुलाजिम दूसरे दिन ही इसके पास इसके गार्ड बन गए और दोनों सुबह लहरा लहरा कर योनी में दाखिल हुए थे। सारा ख्वाब बताती आखिर में चीख पड़ी। हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे गार्ड नहीं बना तानिया का, बल्कि आपके सर पर सौतन ले आया हूँ। इसके सुर्ख चेहरे, फूली सांसों को देखकर बुड़बुड़ाया। आपको आधा बूढ़ा तो आपके वहम ही कर देंगे। मैं इस तानिया के पास नौकरी कर रहा हूँ। शरारतन गोया हुआ वो झटके से सीधी हुई। व्हाट यू मीन ओल्ड वोमन? इसने दहल कर पूछा। ओ यस आई मीन बुढ़ी। तो साफ इंग्लिश में ओल्ड वोमन, हम साफ उर्दू में बूढ़ी बोलिंग। वो मुस्कुराता हुआ सर हिला कर बोला। हानिया ने इसकी इंग्लिश पर आंखें फैलाईं। जब इसका मैट्रिक याद आया तो खिलखिला कर हंसी। मैडम, आप जब इंग्लिश बोलती हैं तो मालूम होता है जैसे फूल झड़ रहे हों। मुझे समझ तो कुछ नहीं आता, पर सुनना अच्छा लगता है। और जब आप वाइल्ड मैन कहती हैं तो हम ख़ुद को इंग्लिश का बादशाह समझने लगता है। गाली तो नहीं देती ना वाइल्ड मैन कहकर? स्कूल छोड़े तो सालों बीत गए, फिर तो सड़क छाप रहकर एक आधा लफ्ज़ ही इंग्लिश का याद रहा। डिक्शनरी में बहुत से लफ्ज़ हैं, पर साला समझ नहीं आता कौन सा पढ़कर कौन सा याद करूं। सब एक जैसे हैं। और आपका वाइल्ड मैन तो ढूंढने से भी नहीं मिला, वो बता रहा था। और हानिया हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अरे वाइल्ड मैन मतलब बादशाह, तुम बहुत समझदार हो। इसीलिए तो तुम्हारी शर्ट तुम्हारे हिसाब से बनवाई थी। इसकी मैट्रिक फेल शर्ट को देखती हुई हंस कर बोली और वो मुँह बना गया। हंसती मुस्कुराती यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और वो पीछे गाड़ी लॉक करता इसका बैग थाम कर इसके पीछे आया। ये बैग थामना भी एक मुसीबत थी। इस नकचड़ी को कौन समझाए? इसे तो सब पर इसकी औकात जाहिर करनी थी कि सब दूर रहें। अंदाज़ मोहब्बत दावा था। बातें इश्क राही थी, मोहब्बत इनकी मजबूरी थी।
गेट से अंदर दाखिल होते ग्राउंड में मोबाइल पर हंसकर किसी से बातें करती तानिया को देखकर वो रुकी और पीछे खड़े behzad ने इसके गोल्डन बालों को देखकर कुछ इस तरह से गंभीर सरगोशी में लफ्ज़ इसके कानों में उड़ेले कि वो साकित सी रह गई। मैडम चलें। वो इसके सामने आया और इसके सब्ज़ आँखों में देखते आगे चलने का इशारा करने लगा। वो होश में आई और इसकी आंखों में देखती इसके अल्फाज सोचने लगी। अंदाज़े मोहब्बत दावा है, बातें इश्क राही हैं, मोहब्बत मेरी ज़ात है, औकात दिखाना मेरी मजबूरी। तुम मजबूर नहीं, नादान हो। हम मखतूम नहीं, इश्क के असीर हैं, बॉडीगार्ड तुम मेरे हो। ये मर्तबा किसी और का नहीं, इश्क में इसरार नहीं। हम राही होते हैं, राही साथ चलते हैं, कदम कदम मिलाकर। चलो साथ चलते हैं, बॉडीगार्ड मेरे, कदम से कदम मिला के चलते हैं। सब्ज़ आँखों से मुस्कुराते हुए कहती सामने की तरफ इशारा करती आगे बढ़ी। इसका दिल छलनी छलनी हो गया इसके अंदाज़ पर। उफ़ मैडम, अगर यही अंदाज़ रहा हम कहीं के नहीं रहेंगे। बुड़बुड़ाता तो इसके पीछे आया। हम तो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर कम वक्त ये दौलत, आपका होम मिनिस्टर की बेटी होना बड़ा ही भारी इम्तहान है गरीब के लिए। दिल में इसे मुखातिब करने लगा। वो बेबसी से इसे देखता रहा। इसके जूते की कीमत इसकी 2 माह की सैलरी मिलाकर भी नहीं बनेगी। व्हाट अ सरप्राइज़ हानिया डार्लिंग, मैं भी तुम्हें ही मिस कर रही थी। तानिया की इस पर नज़र पड़ी तो खुशी से झूमती इसकी तरफ आई और हानिया जबरन मुस्कुराकर खून का घूंट पी कर रह गई। ओह वाओ, ब्लैक ब्लैक। वो जितनी गर्म जोशी से इसकी तरफ बढ़ी थी इतना ही सरसरी सा मिलती behzad की तरफ आई। इसकी ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट की तरफ इशारा करती अपने ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक ही टॉप की तरफ इशारा करने लगी। हानिया शशतर सी मुड़ी। जी इत्तफाक से शायद मैचिंग हो जाती है मैडम। वो मीसना बना मुस्कुरा कर बोला। इसके जवाब में जितनी मिठास थी हानिया के तन बदन में इतनी चूंटियाँ सी रेंगने लगीं। इसके सब्र का मादा ख़त्म हुआ। कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। एक्सक्यूज़ मी। वो तानिया की अरे अरे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया और हानिया की सर्द नज़रें सारा दिन खुद पर झेलता रहा। मैडम क्या हुआ? गाड़ी से निकलते behzad ने झिझक कर पूछा। हानिया ने खूनखार नज़रों से देखा। आपकी आंखों में शायद कुछ चला गया है, सुर्ख हो रही हैं। इसने मासूम बनकर फिक्रमंदी से कहा। खून आ गया अंदर जो तुम्हारी गर्दन से निकाला है। सुलगती इस पर चढ़ दौड़ी। behzad खिसिया गया। एक तो आप गुस्सा बहुत करती हैं मैडम। इसको मज़ीद चिढ़ाते मासूमियत से शिकवा करने लगा। गो टू हेल, वो चटक कर कहती मुट्ठियाँ भींच कर अंदर बढ़ गई। इसकी हालत पर बमुश्किल अपना कहकहा रोक के अपनी बाइक की तरफ बढ़ा और इसे स्टार्ट करता वहाँ से निकला। हारिस साहब टेरेस पर खड़े पुरसोच से इसे जाते देखते रहे। उनकी बेटी के अंदाज से लग रहा था कि वो इस लड़के से बहुत चिढ़ती और नफरत करती थी जो इसका गुस्सा ही बयान करता है। अब वो यहाँ से बेफिक्र थे और फवाद को भी बेफिक्र रहने का कहने वाले थे क्योंकि इन्हें कुछ ज़्यादा ही वसवसे हो रहे थे। अब इन्हें अपना काम करना था। दिन गुजर रहे थे पर ऐसा कोई मौका नहीं मिलता था जिससे वो behzad को कमज़ोर कर सकें और अपने काम में शामिल करें। इन्हें भी इंसानों की पहचान थी। बहुत कम होते हैं वो लोग जो मर कर भी वफादारी करते हैं, जिनमें से behzad भी एक था। काम कैसा चल रहा है डैड? हादी उनके कमरे में आते इन्हें फाइल्स और लैपटॉप पर किसी किस्म की जोड़ तोड़ करते देखकर पूछने लगा और सामने सोफ़े पर बैठा। इसका इरादा आज इन्हें अपनी पसंद की बाबत ज़रा सा इशारा देने का था कि वो हानिया से नहीं रोमैसा से मोहब्बत करता है और शादी भी उसी से करेगा। इसे कोई हानिया की दौलत शौलत नहीं चाहिए बस। अच्छा चल रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि इस बार जो 3 न्यू वर्कर रखे हैं ना वो बहुत मेहनती और वफादार हैं। इतनी इतनी से रकम का हिसाब देते हैं, बल्कि पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने 2 दिन उन पर नज़र रखवाई। बहुत अच्छे वर्कर हैं। फवाद साहब बहुत खुश लग रहे थे। इसका अंदाज़ा उनके लहजे से हो रहा था। हादी ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा और जिस मकसद के लिए आया था इसके लिए लफ्ज़ों का चुनाव करने लगा कि किस अंदाज से बात शुरू करे। क्या सीधा सीधा कह दे कि डैड मैं रोमैसा से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं मज़ीद इस दौलत के खेल का तमाशा नहीं बनना चाहता। मुझे इजाज़त दें। मैं अपनी ज़िंदगी दौलत की हविस में भागने के बजाय इज़्ज़त से गुजार सकूँ। फवाद साहब के रिएक्शन का सोचते इसने झुरझुरी ली। वो इसी कश्मकश में था कि बात करे ना करे, ये मौका मुनासिब है भी या नहीं। तुम्हें कुछ कहना है? उन्होंने नज़रें लैपटॉप से हटाकर ज़रा सा ग्लासेस नीचे करता पूछा। वो शायद इसकी कश्मकश महसूस कर चुके थे। जी डैड। हादी ने झट से सर हिलाया। तो बताओ ना, ऐसे लड़कियों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? उनके तंज पर वो खिसिया गया। वो बात यह है दरअसल डैड। उसकी बात बीच में ही रह गई। फवाद साहब के मोबाइल पर बेल हुई। वो इससे 1 मिनट का कहते मोबाइल पर मसरूफ़ हो गए और हादी बैठा इन्हें काफ़ी देर तक देखता रहा।
फवाद साहब की फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूदा फ़र्द से लंबी तकरार हो रही थी। बेचैनी से बैठा, पहलू पे पहलू बदलता इन्हें देख रहा था। हाँ बोलो। मोबाइल रखते इससे बोले। कौन था डैड? उसने इनके चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा। वही मैनेजर था, कुछ कैश का मसला था, वो हल कर रहे थे। फिर क्या कर रहे हैं आप? और वो लोन जो आपने इंग्लैंड के बैंक से लिया था, इसका क्या? इसे हैरत हुई। करोड़ों ऐसे ही ख़त्म हो गए क्या? बेवकूफ़, बड़ा टेंडर है तो पैसे भी बहुत लगेंगे। दूसरे बैंक से लोन के पेपर रेडी करवा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, फिर देखना हमारी दौलत। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि हादी की बातें हलक में ही फंस कर रह गईं। अब बोलो भी, क्या कहना है? खामोश देखकर गुस्सा होकर बोले, डैड मैं इसने हिम्मत की बोलने की। पहले मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम जो आजकल हानिया से दूर भाग रहे हो, ये मेरी आंखों से छुपा नहीं। हादी, इज्जत से बातें किया करो, इसे घुमाने फिराने ले जाया करो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। उन्होंने गुस्से से इसे वार्न किया। हादी गुस्से ज़ब्त से इन्हें देखता उठ खड़ा हुआ। मैं वो करूँगा जो मेरा दिल कहता है। वो मुझे जूते की नोक पे रखती है और आपको इसकी दौलत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। गुस्ताख लहजे में कहता वहाँ से निकलता चला गया। ज़्यादा बकवास मत करो, बर्दाश्त करो, कहा तो है, फिर अपने बदले ले लेना। इसके पीछे से दहाड़ते फवाद साहब सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। हादी अपने रूम में आकर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। वो जितना इसे आसान समझ रहा था, इसे मनवाना इतना ही मुश्किल था। वो कैसे हैंडल करेगा ये सब? अल्लाह, अब आप ही कोई मदद करो, मुझे इस दलदल से बचाओ, वरना मैं ख़ुद को कुछ कर बैठूँगा। थक हार कर सोफे पर बैठते इसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। काश ये मेरा वहम ना हो और हनी को सच में इस बॉडीगार्ड से मोहब्बत हो जाए, तो सारे रास्ते ही साफ़ हो जाएंगे। कम अज़ कम वो बेचारी धोखे का शिकार तो नहीं होगी, मोहब्बत तो मिलेगी इसे। वो जानता था हारिस साहब हानिया पर जान देते थे और वो इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। अगर वो शादी से इनकार कर दे तो ज़रूर हारिस साहब भी इनकार कर देंगे, पर कोई वजह तो हो हानिया के पास। अगर वो ये कहेगी कि मैं दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ, तो ज़रूर डैड ख़ुद को कुछ कर लेंगे और इन दोनों की दोस्ती में भी मेरी वजह से नफ़रत आ जाएगी। हादी का बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। इस कदर बेबसी का जायका इसे अब चखना नसीब हुआ था, बल्कि ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। इस तरह से कैफियत में बेड पर दराज हो गया। रोमी का शर्माया स्वरूप जब सामने आया तो बेखुदी में वो मुस्कुराने लगा। काश इस वक्त तो मेरे पास होती। तसव्वुर में इसे मुखातिब करते तकिए को दोनों हाथों में भींच लिया और आंखें मूंद लीं। आज तुम काफ़ी लेट हो, क्यों? वो अपनी कलाई में बंधी नफीस सी छोटे छोटे डायमंड्स वाली घड़ी में वक्त देखने लगी, जो आज 10 मिनट लेट था। सॉरी मैडम, 10 मिनट लेट हो गया, देखे बगैर माजरत करने लगा। क्यों लेट हुए? पूछते हुए इसने मुलाजमा का लाया हुआ जूस का गिलास लबों से लगाया। बेहजाद ने नज़रें ऊपर उठाईं और इसके गोल्डन शोल्डर कट बालों को देखते इसके चेहरे को देखने लगा। हानिया की नज़रें भी इस पर टिकी थीं। हारिस साहब इलेक्शन के करीब होने की वजह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अब्दुल्ला और 2 दूसरे गार्ड्स के साथ रवाना हो गए थे। अब घर में सिर्फ मुलाजमीन और गार्ड्स थे और हानिया बेहजाद के सामने खड़ी थी। मैडम, जिस किराए के रूम में मैं रहता हूँ ना, इसके मालिक की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने इससे कहा था कि हॉस्पिटल चलें, पर वो नहीं माने, तो बस मैं उनके पास सारी रात बैठा मिन्नतें करता रहा जाने के लिए, तब भी वो नहीं माने। मजबूरन मुझे देर रात से सोना पड़ा, इसीलिए सुबह लेट आँख खुली। अब जल्दी जल्दी में फिर भी 10 मिनट लेट हो ही गया। इसे देखते हुए पूरी बात बताई। हानिया सर हिलाते हुए इसके मुसलसल देखने पर नज़रें चुराती गिलास मुलाजमा को थमाकर आगे बढ़ गई। इसकी नाक की सुर्खी बेहजाद महसूस कर गया था, जो शायद इसकी नज़रों की तपिश से आई थी। इस दिन वो इससे नाराज़ हो गई थी और बेहजाद इसे मनाने के लिए छोटे छोटे चुटकुले सुना रहा था। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करती रही। आखिरकार इसकी कोशिश कामयाब हुई और गाड़ी की फ़ज़ा में इसका खनकदार कहकहा गूंज उठा। आखिर में हंस हंस कर जब वो ख़ुद को संभाल गई तो यू शट अप कहती चीख पड़ी और बेहजाद ने मुस्कुराते और सर को खम देते तारीफ़ वसूलते थैंक यू कहा। ये कैसा जुनून था इस नक चढ़ी का। वो बस चाहती थी कि बेहजाद किसी लड़की से नज़रें भी ना मिलाए, कहना तो दूर इस तरफ देखे भी ना जहाँ से किसी लड़की का गुजारो। दोनों जानते थे अपनी फीलिंग्स शेयर भी कर चुके थे, फिर भी अनजान बनते थे। मैडम, बेहजाद जो इसके लिए बैक डोर खोले खड़ा था, इसे दूसरी तरफ से फ्रंट सीट पर बैठते देखकर हैरान हुआ। ये मेरी गाड़ी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ भी बैठूँ। अब तुम मज़ीद बकवास या हैसियत औकात पर रोशनी डालने के बजाय सीधा अंदर बैठो, मुझे देर हो रही है। भन्ना कर बोली। नाचार बेहजाद को लब भींच कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठना पड़ा। सर नाराज़ होंगे अगर उन्होंने देखा तो। हानिया ने कोफ्त से इसे देखा। सर तो इस पर भी नाराज़ होंगे जब तुमने उनकी बेटी को हक किया।
सर इस पर भी नाराज़ होंगे जब इनकी बेटी को रात को डराया था किचन में। इसके गुस्से भरे लहजे पर वो खिसिया गया। ये भी ठीक कहा, हामी भरते सर हिला गया। हानिया ने हैरत से देखा, अफसोस से सर इधर उधर हिलाया। रीना के कॉल आने पर वो इससे बातों में मशगूल हो गई और वो वक्तन फ़वक्तन बहज़ाद की नज़रें ख़ुद पर बखूबी महसूस कर रही थी और लब दांतों तले दबाकर मुस्कुरा देती। रीना से इसने अपनी फीलिंग शेयर की थी और अभी वो इसे छेड़ रही थी कि एक गार्ड के इश्क में गोडे गोडे डूब गई है और वो मुसलसल हंस रही थी, अपने फ़लसफ़े भी बयान कर रही थी। तो फिर कब कर रही हो इजहार इश्क? रीना ने शरारत से पूछा। हानिया ने पलकों की ओट से बहज़ाद को देखा जो बड़ी महारत से BMW ड्राइव कर रहा था। बहज़ाद के चेहरे पर इसकी बातों का कोई तासुर नहीं था क्योंकि वो जानती थी मैट्रिक फ़ेल, वो क्या जाने इंग्लिश। मैं चाहती हूँ पहल वो करे और अपनी सौकार्ड दौलत ना होने के एहसास से कमतरी से बाहर आए। इसने अपने दिल की ख्वाहिश सामने रखी और ये कहते इसके गाल सुर्ख अनार हो गए थे जिन्हें वो बहुत मुश्किल से छुपाती सर विंडो की जानी मोड़ गई थी। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसी भी पहल लड़कों को करनी चाहिए जो यहाँ नहीं होती। रीना मुँह बनाकर बोली। इसकी बात सुनती हानिया हंस पड़ी। अच्छा जी, कौन था जिससे तुम्हें पहल करनी पड़ी? वो हंसकर पूछने लगी। यार वही सनी। रीना अपने होटल के मैनेजर का नाम बताती हुई चिड़ी। ओ वाह! हानिया को मालूम था रीना अपने होटल के यंग मैनेजर सनी से मोहब्बत करती है, पर इससे कभी इजहार नहीं कर सकी। फिर जवाब क्या मिला? इसने चोर नज़र से बहज़ाद को देखते हुए पूछा। यस, वो शर्मीला सी हंसी और हानिया खुशी से चिल्लाई। शादी कब है? बेताबी से पूछा। अभी वक्त है, शायद या 2 साल। क्यों? हानिया ने इसके लहजे में मायूसी साफ महसूस की तो ख़ुद के लहजे में भी मायूसी आ गई क्योंकि इसे भी कुछ बनना है। सारी उम्र तो मेरे रेस्टोरेंट में मुलाजिम नहीं रह सकता ना। हानिया ने यह सुनकर इसे समझाते हुए सनी के फ़ैसले को सराहा और रीना को भी ताकीद की कि वो इसका साथ दे। फिर इसे मालूम हुआ कि उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली थी। वो चीख उठी। तब मुस्कुराते रीना ने इसे अपनी तस्वीर भेजी जहाँ इसके हाथ की तीसरी उंगली में डायमंड चमक रहा था। यह खड़ूस तो मुझे एक चांदी की रिंग भी नहीं पहना रहा, इसने हसरत से देखते हुए सोचा और मुंह बना गई। पर वो रीना के लिए बहुत खुश थी कि आखिर इसकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते जब वो अंदर जा रही थी, बहज़ाद ने हाथ बढ़ाकर इससे इसका बैग ले लिया। हानिया पलट कर इन्हें इसे देखा। इसकी आंखों में अजीब से रंग देखकर वो मुस्कुराई और अंदर दाखिल हो गई। लेक्चर नोट करते हुए भी इसकी नज़रें बार बार भटक कर डोर पर खड़े बहज़ाद पर जा रही थी। खामोशी से बाजू सीने पर बांधे खड़ा था। फिर अचानक प्रोफेसर के टोकने पर वो हड़बड़ाती उनकी जानिब मुतवज्जा हुई, मगर वो बहज़ाद के लबों पर तबस्सुम देख चुकी थी। अपनी बेसाख्तगी पे खुद भी वह नज़रें झुकाई मुस्कुराती। मैडम, आप बाल बड़े क्यों नहीं कर लेती? सैलून के सामने गाड़ी रोकते बहज़ाद ने मुस्कुरा कर कहा। हानिया ने एक बार फिर कपड़ों से हट कर इसकी राय सुनी, वो भी बालों पर। इसका दिल जल भुन गया कि मतलब कि इसे हमेशा मुझ में सिर्फ नुक्स ही दिखेंगे, कभी तारीफ़ नहीं कर सकता। कुड़ कर सोचने लगी। जी, आपने कुछ फरमाया? पलट कर दोनों बाजू कमर पर टिका कर दांत पीसती से घोलने लगी। बहज़ाद इसके फूलते नथनों को देखने लगा। जी, मैंने फरमाया कि बाल बढ़ा लें, बहुत खूबसूरत लगेंगी। आंखें घुमाकर इसके स्टाइल को देखता हुआ बोला। वेरी फ़नी। मुझे हंसी नहीं आई। अपने छोटे छोटे मोती जैसे दांत दिखाती हुई बोली। और मुझे लगता है आपको हंसी आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा। इसे गहरी नज़रों से जांचते हुए बोला। तुम अपनी ड्यूटी करो, मुझ में नुक्स निकालना बंद करो। वो इसे उंगली उठाकर वार्न करने लगी और बहज़ाद ने आसपास के पार्किंग एरिया को खाली देखकर इसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर इसे अपनी तरफ खींचा। घबराती शशतर सी इसके सीने पर क्लच वाला हाथ रखकर हाथ भर का फासला कायम कर गई। इस तरह की ड्यूटी पर आप नहीं उकसाए मैडम, अब तो हम डबल ड्यूटी देंगे। वो इसकी उंगली अपने लबों के करीब ले गया। हानिया हड़बड़ा कर इसे धक्का देती इससे दूर हुई। इसकी धड़कनों के साथ इसकी सांस भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसने बेसाख्ता बहज़ाद की शरारती नज़रों से बचने के लिए अपने लरसती पलकों के आगे हाथ किया। तुम्हें तानिया में तो कभी कोई कमी नज़र नहीं आई? इसने अपनी धड़कनों को संभाल कर गुस्से से पूछा। बहज़ाद अपने घनी दाढ़ी दाएं तरफ अंगूठे से खुजाता इसे देखने लगा। इसे कभी गौर से देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसकी तरफ झुक कर बोला और हानिया एकदम घबरा कर इसे वहीं छोड़ती अंदर भाग गई। बड़ी हलाको खान बनती थी। हंसकर गाड़ी लॉक करता इसके पीछे आया और इसे रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बातें करते देखकर इसके पास पहुंचा। अगर तुम अपने जंगल का सफाया करवाना चाहते हो तो वहाँ साइड पर चले जाओ, बिल मैं पे कर दूंगी। बहज़ाद की घनी दाढ़ी मूछे और लंबे पौनी वाले बालों को देखती बोली। सॉरी मैडम, पर मुझे अपनी फसल बहुत ही पसंद है, ये अपनी रुत आने पर ही कटेगी। दाढ़ी पर हाथ फेरते बोला तो हानिया हंस पड़ी।
खुद को जान ये मान समझते हो। नाक चढ़ाकर इसे वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार का इशारा करती हुई चली गई। behzad सर झटक कर पीछे आया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अंदर नहीं आ सकते, रंगीली नाराज़ होगी। वो इसके पीछे आने पर लिफ्ट के सामने रुकती आंखें दिखाकर बोली। behzad ने रंगीली नाम पर हैरत से देखा। ये मेरा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के बीच अगर रंगीली या मंगोली आई तो ब्लैक एंड वाइट बना दूंगा। इसके लिफ्ट में दाखिल होने से पहले ख़ुद लिफ्ट में दाखिल हो गया और हानिया को वहीं बाहर खड़ा देखकर इसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा। वो लहरा कर इसके सीने से लगी। बहन ज़रा बात सुने, ये बाल कटवाने, हाथ पाँव के नाखून साफ़ करने वाली दुकान किस मंजिल पर है? हानिया को देखता वो वहाँ से निकलती लड़की से बोला, जिसके बाल देखकर इसे हंसी आने लगी थी, जैसे इसके बाल चूहे काट कर गए हों। लड़की इस हीरो के मुंह से अपने लिए बहन लफ्ज़ सुनकर तिलमिला उठी। जस्ट शट अप, फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती वहाँ से निकल गई। behzad ने हैरत से खिलखिलाती हानिया को देखा। मैडम, क्या मेरे मुंह पे लिखा था कि इसके बालों को चूहे कुतर गए? इसकी बात पर हानिया ने हंस हंस कर लोटपोट होते इसके सीने पर मुक्का मारा। शट अप वाइल्ड मैन, बमुश्किल ख़ुद को संभाल कर वो बोली, जिस पर behzad ने इनाम एजाज़ की सूरत वसूलते सर को खम दिया। हानिया ने इसके सर पर अपना क्लच मारा। वो 3rd फ्लोर पर आ गए, जहाँ रंगीली नाम की ना औरत ना ही मर्द बनाओ सिंगार किए बालों के 1000 कलर्स के साथ मटक मटक कर वहाँ मौजूद लड़कियों के बाल, नाखून, चेहरे पर लगे क्रीम चेक कर रही थी। यह रहा था। मैडम, ये तो कोई और ही मखलूक लग रहा है। वो रंगीली को देखता हुआ बोला। हानिया ने घोरा तो सर खुजा गया। मुझे लगता है तुम्हारे सर में जुएँ हो गई हैं, इसीलिए बार बार बकवास करने के बाद सर खुजाते रहते हो। बरहमी से बोली तो behzad मुस्कुराया। अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो मेरे बालों में झांक लेना, शायद ये भी आपकी तवज्जो चाहती हैं। गंभीर लहजे में बोला, पर इस पर उल्टा ही असर हुआ था। रंगीली, बार्बर को बुलाओ और इस वाइल्ड मैन के सारे बाल इसके सर से अलग करके देखो, क्या इसके सर में जुएँ हैं? वो इसे देखती हुई चीखी। वहाँ मौजूद सबके सर उनकी तरफ घूमे।